I've just returned from Pakistan after seeing my Ammi. Australia's criminal inaction on climate is deeply felt there, felt in the extreme heat, felt in the melting glaciers washing away entire villages, and felt in the everyday life of children in Pakistan. Australia's criminal action? An Australian senator in the Australian Senate talking about the plight of another country and labelling her own country criminal. What's going on here? ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि इसे ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में किसने चुनकर भेजा है भाई जो ऐसी बात करती है. Australia is criminal. Australia is to blame. This is disgusting and idiotic stuff coming from anyone. पाकिस्तान में अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो उसके लिए फारूकी ऑस्ट्रेलिया को क्रिमिनल यानी कि अपराधी बता रही है भाई. इसको कंडेम करना चाहिए. मैं इसको एक्ट ऑफ सीरियस टेररिज्म कहूंगा. इंडिया अब एक ऐसा पार्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है. Why isn't she protesting at the Chinese embassy, who account for about a third of the world's carbon dioxide emissions? कोई भी पाकिस्तानी नेता चीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता. ये बात मानी भी जाती है, लेकिन महरीन तो ऑस्ट्रेलियाई सांसद हैं. उन्हें चीन से क्यों डर लग रहा है? ये पार्क जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा. नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही अनोखा इंसिडेंट हमें नज़र आया है ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में, जहां ऑस्ट्रेलिया के ही एक सांसद ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर के ऑस्ट्रेलिया को ही जिम्मेदार ठहरा रही है पाकिस्तान में आए बाढ़ और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रही तबाही का. दरअसल दोस्तों, ये जो सांसद है इनका नाम है महरीन फारूकी और इनका ओरिजिन पाकिस्तान से है. इनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो तबाही हो रही है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, उसका जिम्मेदार ऑस्ट्रेलिया है और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को कंपेंसेट करना होगा पाकिस्तान को पैसे दे करके. यानी कि ये पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया सांसद ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर के फिर से पाकिस्तान के लिए भीख मांग रही है. दरअसल दोस्तों, हम सब जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस चाइना और अमेरिका में होती है, जिसके वजह से पूरी दुनिया को नुकसान झेलना पड़ता है. लेकिन पाकिस्तान के लोग अपने अब्बू चीन से भीख मांगने के बजाय पूरी दुनिया से भीख मांगते फिरते हैं और अपना विक्टिम कार्ड खेलते हैं. तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं. I've just returned from Pakistan after seeing my Ammi. Australia's criminal inaction on climate is deeply felt there, felt in the extreme heat, felt in the melting glaciers washing away entire villages, and felt in the everyday life of children in Pakistan who are suffocating in an ever deadly mix of intense heat and trapped pollution. So we must remember also to lift our gaze. We must start a process of making climate reparations to the global south countries who are most harmed by Australia's contribution to the climate crisis. Australia is criminal. Australia is to blame. Australia harms Pakistan and we should pay reparations. This is disgusting and idiotic stuff coming from anyone, but coming from an Australian politician, someone elected to our National Senate, surely is just beyond the pale. Australia contributes, as you know, about 1% of global emissions and falling. As our chief scientist once declared, if we shut ourselves down altogether and produced no emissions, it wouldn't make any difference to the climate. Yet Faruqi slanders her own country, says we're to blame for Pakistan's natural disasters. She ought to be ashamed of herself and she ought to resign from the Senate. Why isn't she protesting at the Chinese embassy, who account for about a third of the world's carbon dioxide emissions? We already knew that Mehreen Faruqi didn't like Israel, but it turns out she's not a big rap on Australia either. ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट की इन मेंबर का नाम है महरून फारूकी, महरीन फारूकी, और ये पाकिस्तानी मूल की है. अब आप समझे कि मैडम जी क्यों ऑस्ट्रेलिया को क्रिमिनल बता रही हैं और क्यों पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के विक्टिम के तौर पर पेश कर रही हैं.
अब मैडम चूंकि ऑस्ट्रेलियन सीनेटर हैं और ऑस्ट्रेलिया के सीनेट में पाकिस्तान के नाम पर ऑस्ट्रेलिया को ही क्रिमिनल ठहरा रही हैं, तो जाहिर है बवाल मचना था। तो बात जो समझ में आ रही है वो कि सीनेटर फारूकी साल 2022 में पाकिस्तान में आई, भयंकर बाढ़ के लिए ऑस्ट्रेलिया को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। पाकिस्तान में अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो उसके लिए फारूकी ऑस्ट्रेलिया को क्रिमिनल यानी कि अपराधी बता रही है। भाई पाकिस्तान में अगर भीषण गर्मी और प्रदूषण है तो भाई फारूकी मैडम के लिए ऑस्ट्रेलिया ही जिम्मेदार है और ऑस्ट्रेलिया अपराधी है। अब आगे बात करने से पहले आपको महरीन फारूकी का पूरा बायोडाटा बताता हूं। महरून फारूकी द ग्रीन्स, जिसे ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्स भी कहा जाता है, उस पार्टी की सीनेटर है। 1963 में पाकिस्तान में पैदा हुई महरीन पाकिस्तान से ही सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं। 1992 में वो अपने पति और बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई। यहां उन्होंने इन्वायरमेंटल स्टडीज में पीएचडी की और फिर 2004 में उन्होंने ग्रीन्स पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन 31 जुलाई को उन्होंने पार्लियामेंट में जो बयान दिया उस पर सवाल उठने लाजमी थे। एक्चुअली इस बयान से ऐसा लग रहा था कि महरीन एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और ऑस्ट्रेलियन सीनेटर नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी हैं, और यही वजह है कि स्काई न्यूज पर उनसे रिजाइन तक मांग लिया। Australia's criminal action? An Australian senator in the Australian Senate talking about the plight of another country and labelling her own country criminal. What's going on here? Australia is criminal. Australia harms Pakistan and we should pay reparations. This is disgusting and idiotic stuff coming from anyone, but coming from an Australian politician, someone elected to our national Senate, surely is just beyond the pale. इतना ही नहीं, स्काई न्यूज के होस्ट ने सीधे तौर पर फारूकी से इस्तीफा मांगा। Faruqi slanders her own country, says we're to blame for Pakistan's natural disasters. She ought to be ashamed of herself and she ought to resign from the Senate. चौंकाने वाली बात यह है कि फारूकी ठीक ऐसा ही बयान पाकिस्तान के लिए फंड इकट्ठा करने के एक रेडियोथॉन प्रोग्राम में भी दे चुकी हैं। ये जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, इन्होंने तबाही मचा दी है। मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, और मुझे पता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ भी है इस दुनिया में बेहद जेनरस है। तो मैं आप सब से जो इस रेडियोथॉन और SBS रेडियो सुन रहे हैं उन सब से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ दिल खोल के दीजिए सैलाब ज़दगान लोगों के लिए। और मैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से भी गुजारिश करती रहूँगी कि वो एड जो दे रहे हैं पाकिस्तान को उसको बढ़ाएं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ टू पे इट्स फेयर शेयर। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्लाइमेट इमरजेंसी के लिए और क्लाइमेट क्राइसिस के लिए, and they must take responsibility and pay their fair share to help those who have been affected so badly by the super floods in Pakistan. यकीन मानिए फारूकी का बयान है भी बहुत अजीब। इसकी कई वजह है। पहली वजह यह है, जरा इस मैप को समझिए। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा की जो हवाई दूरी है वो करीब 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। पाकिस्तान में अगर बाढ़ आती है, भारी बारिश होती है, गर्मी पड़ती है, तो सीधे तौर पर इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को न केवल दोषी बताना बल्कि उसे अपराधी करार देना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता।